Good evening, everyone. I, Ramandeep, along with my co-host Soumya, warmly welcome you all to the Business Conclave on Success Story of Living Library, organized by Vidyan Bharati Vidarbha Prant in collaboration with IIM Nagpur. This platform acts as a bridge, allowing the wisdom and experience from the highest levels of the corporate world to reach and inspire eager minds like ours. As we begin this auspicious event, let us invoke divine blessings with the lighting of the ceremonial lamp and Bharat Mata Pujan, symbols of knowledge, wisdom, and patriotism. I request our esteemed dignitaries, Dr. Matri, Mr. Nawal, Mr. Ramakrishnan, Dr. Rate, and Mr. Shafekar to step forward for the lighting of the lamp and Bharat Mata Pujan. ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा कस्य विद्धनम् विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः I now request Dr. Maitri, Mr. Nuwal, and Mr. Ramakrishnan to please come on stage. Please give a big hand for our esteemed guests. It is indeed a moment of great honor and privilege for us to extend a warm welcome to the esteemed dignitaries gracing this occasion with their presence. Their unwavering commitment and contributions have truly been inspiring, and we are delighted to have them with us today. To honor our esteemed guests, we now invite our director, Dr. Bhim Rai Maitri, to kindly present a bouquet as a token of our appreciation and respect. Now, I would like to invite on stage Mr. Naresh Safikar, National Governing Council member, to introduce us to Vidyan Bharati Vidarbha Prant. Good evening, everybody. Today, I'll be playing two roles. Number one, give a brief introduction of Vigyan Bharati and the background of this program. So, Vigyan Bharati is a national level organization
Actually, we should say international because it has units in Gulf countries as well. It works all over India in 36 different units. Vidarbha is one such unit, and we are organizing this program. Vijnan Bharati works with the goal of propagating and popularizing science, taking it to the masses, using science and technology for the betterment of society and our country. With that background, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागपुर में सत्यनारायण जी नोवाल जैसे एक बहुत बड़े उद्योगपति हमारे बीच में हैं, जिनके बारे में शायद ही नागपुर में बहुत कम जानकारी है। उसका एक कारण है कि सत्यनारायण जी बड़े ही सरल स्वभाव के ऐसे व्यक्ति है जिसको प्रसिद्धि परांगमुख मराठी में हम कह सकते हैं, तो वैसे व्यक्ति है। तो हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, एमबीए के बच्चे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, जो आगे चल के एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे, उनको व्यवसाय शून्य से लेके आज जहां सत्यनारायण जी है वहां तक या उससे भी आगे ले जाना है, तो कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो हम में से सबके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न होते हैं। ये प्रश्नों के उत्तर हम क्या सत्यनारायण जी से ले सकते हैं, इस विचार के साथ हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। आई एम श्योर कि सारे बच्चों के मन में कुछ ना कुछ प्रश्न होंगे जो हम उनसे पूछना चाहते हैं। आज हम देखेंगे कि कॉलेजेस के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे कई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है, ऐसे सब लोग यहाँ पे प्रोफेसर्स है कॉलेज से। सो हर एक के मन में कोई ना कोई प्रश्न है। आई एम श्योर बच्चों को मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो चाहेंगे कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। यहाँ इतने सारे सामने बैठे हुए अकम्पलिश लोग हैं, बट उनके भी मन में कुछ ना कुछ प्रश्न होंगे। वैसे ही मेरे मन में कुछ प्रश्न है कि इतने सरल स्वभाव के, इतने सिंपल हम्बल पर्सनालिटी, शून्य से लेके आज वो जहाँ पहुंचे हैं, इतना होने के बावजूद एक श्रद्धालु व्यक्ति, बहुत श्रद्धालु ऐसे पर्सन है। समाज में कई गतिविधियों में उनका सहभाग होता है, सामाजिक कार्यों में उनका सहभाग होता है, देश के लिए उनके प्रति बहुत उनके मन में प्यार है। ये सब चीजें एक व्यक्ति में है और व्यक्ति बहुत ही सरल है और उनसे संपर्क करना, उनसे बातचीत करना बहुत आसान है। तो ये कैसे सब कुछ हम अचीव कर पाते, ऐसे प्रश्न मेरे भी मन में थे। लेट्स होप कि आज के कार्यक्रम के बाद हमारे ये प्रश्न भी एड्रेस होंगे और बाकी आप बच्चों के मन में जो प्रश्न होंगे वो भी एड्रेस होंगे। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए कहता हूं। धन्यवाद।
दृढ़ निश्चय, संकल्प प्रबल, रक्षा क्षेत्र में उड़ान, सोच का एक विस्फोट हुआ, करे विश्व सम्मान। भीलवाड़ा के प्लेटफॉर्म से एक टिकट कटाया, पिता के आदर्शों से अपना जीवन सजाया, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर अपना वक्त बिताया, संघर्षों पर अपनी बुनियाद रखी और हर एक अवसर को अपनाया। स्याही बनाने वाली कंपनी बंद होने के बाद बहुत सी बाधाओं का सामना करते हुए
मुस्कुराकर देखा विस्फोटक पदार्थ पर सोलर नाम की स्याही चढ़ते हुए। कठिनाइयों से भरी राहें चुनी और कम साधनों के साथ आगे बढ़ते हुए देश के लिए किया श्रेष्ठम सृजन ऊर्ज मंडलीय मंथन करते हुए। स्वावलंबी बनाकर देश को विश्व की दृष्टि में रोशन किया। पराक्रम है नारायण का, प्रारब्ध से वचन लिया। भारतवर्ष के निर्माण व सुरक्षा का संकल्प कर आत्मविश्वास से लाई क्रांति और हमें एक अद्भुत साम्राज्य दिया। समाज में उद्योग और औद्योगिक शिक्षा के लिए आपकी सम्मानित विरासत पीढ़ियों दर पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। दृढ़ निश्चय, संकल्प, As we now move forward, it is time to hear from a visionary leader whose guidance and wisdom continue to inspire us. We are honored to invite Dr. Vinda Metri, the director of IIM Nagpur, to share his valuable thoughts about the business conclave on the success story of the Living Library. Sir. Very good evening. Namaskar. Respected Sri Satyanarayan Nuwalji, founder, executive chairman of the board of Solar Industries India Limited, Ramakrishnan ji, a serial entrepreneur, the president, Vigyan Bharati, Vidarbha Prant, all the executive members, advisors, faculty members, invited guests, my dear students, ladies and gentlemen. Today is a proud moment for all of us, son of the soil. You have just saw a short film of Solar Industries, adversity and success, how both goes together is a living example of Satyanarayan ji, how he started and today the solar industry, what it is, and spreading across 45 countries, not only in India, but this speaks a lot about a success story of a great visionary and role model, not only in Maharashtra, but entire country. He is a role model, how one should get into the business as a first generation educator, and then moving forward, setting an example from India. You know, our Prime Minister always says vocal, local, and global. I think that slogan fits well with Sri Satyanarayan ji, local, vocal, and global, going global. So we all are lucky to have today him here. And actually, IIM Nagpur was trying last 2 years to get Satyanarayan Saab here to address our students and faculty, but it was not materializing. One or other reason, his time was not permitting, and we were looking at occasion. Such a person calling here with occasion is extremely important, when today is that occasion. And thanks to Vigyan Bharati for organizing this a great event here at IIM Nagpur. And before going forward, I'll just introduce, I think, some of you briefly about IIM Nagpur. IIM Nagpur
a new generation IIM started 2015, and this campus where we are here, this is located in Mihan, 132-acre campus and 75,000 square meter we have constructed, and another 25,000 square meter we are constructing. The work is going to start very soon because of the expansion, a plan of IIM Nagpur. And currently we are running our main flagship MBA program, MBA executive program for Nagpur campus and Pune campus. We are also running PhD program for regular as well as working executives. And another important vertical of IIM Nagpur is executive education. And IIM Nagpur is the first one after the first 6 IIM to elevate itself as a leader in executive education. So every year, IIM Nagpur generates executive education training program, short-term certificate, consultancy and research project. It amounts 35 crores every year. So recently, IIM Nagpur has been ranked by India Today as a 10th position in executive education. And IIM Nagpur started executive education just 3 years back after moving to the new campus. We were in VNIT after moving to the new campus 3 years back. We started journey, and today IIM Nagpur is doing large number of program in public as well as private sector. To name a few: Steel Authority of India, newly promoted people; Lupin, senior vice presidents, 200; Tata Tocom, senior executives, a 15 months program. We are also doing Neyveli Lignite. We have signed MOU for coming 3 years, beating IIM Bangalore, Kozhikode and Trichy. We have got the program, NCRT program, first of its kind here. Government of India has identified IIM Nagpur for training. We also do number of programs in area like L&T, Larsen and Toubro in private sector, Lupin, Nordics. And in public sector, as I told you, Coal India, and you name a few, you name almost all public sectors, we are doing training programs. Similarly, IIM Nagpur conducts program for state government as well as central government. We are the one amongst the, first in IIM to do the Chief Minister Fellowship program for Government of Maharashtra. We are also associated with Disaster Management Agency of Government of Maharashtra, particularly in the area of how to evacuate the people in crowd, area like Dadar, and also Trambakeshwar 2028. Kumbh is going to come, and IIM Nagpur is partnering with the Government of Maharashtra for urban planning as well as meticulous planning, how to evacuate the people and avoid the risk. So we are part of it. IIM Nagpur also has Section 8 company called INFED, IIM Nagpur Foundation for Entrepreneurship Development. So this is a Section 8 company. We got AIC, Atal Innovation Center, a Prime Minister plan 2 years back was 101 AICs, and IIM Nagpur is right 1 out of 101. And there are many AICs, but IIM Nagpur got the highest funding of 10 crore, and very few institutions have got. We are one among them. We also received the funding from Department of Science and Technology, NIDHI, and Startup India Seed Fund, Genesis from Ministry of Electronics and Telecommunication, and Department of Promotion, Ministry of Commerce. So various areas we are receiving a funding for the area of agri-tech as well as the entrepreneurial area in various sectors. Similarly, IIM Nagpur conducts the consultancy assignments for various industries. To name a few: Bosch India, Titan, Forest Corporation of Maharashtra, National Cancer Research Institute, to name a few. IIM Nagpur also partnered recently with Government of Maharashtra to its Mitra project, Maharashtra Institute of Transformation. We are joined as a knowledge partner. Currently, Maharashtra has 0.5 trillion economy, and 27-28. Our Honorable Chief Minister plan is take it to 1 trillion. So it is a very ambitious plan, and IIM Nagpur joined hand with Government of Maharashtra in this project.
So these are some of the programs, and apart from this, I am Nagpur also involved in various social projects in the area of agri-tech. In Government of Maharashtra, Agriculture Department of Government of Maharashtra, they have come out with magnet project, Maharashtra Agribusiness Network Society. I am Nagpur has been identified as a center of excellence for Marathwada and Vidarbha region for the 6 crops. And with ADB, I am Nagpur is working how to raise the bar for farmers using that magnet project of Government of Maharashtra. And I am Nagpur last year discussion with the Government of Maharashtra. Government of Maharashtra has agreed to give 70-acre land to set up I am Nagpur campus in Pune. So the land transfer process is going on. Probably very soon we will get the land and we may actively start our campus there. Currently it is in Wamnicom, close to Pune University. Similarly, I am Nagpur also has its plan to set up transit campus in Goa. Goa government already requested us to set up the transit campus. For high-end program, we are going to go to Goa. And going forward, I am Nagpur is also planning to set up its campus in Hyderabad, because Pune and Hyderabad are the big cities and IT cities. To cater the needs of these two areas, I am Nagpur is going to set up its campus. These are some of I am Nagpur future plan. So with this, I once again welcome Satyanarayana Novalji for his insights, for his wisdom, for all of us. And I'm sure each one of us are going to gain a lot. And similarly, I welcome today's moderator, Ramakrishnan for I am Nagpur, and all the distinguished participants, my dear students. Once again, welcome all of you. Namaskar. Now, I don't take much time. I request Ramakrishnan ji to go ahead for interim. Namaskar. Thank you, Dr. Bhim Rai ji. You are indeed a rare diamond, a rare guru, a rare brilliant guru. In fact, by the way, guru, the word guru is a Sanskrit word, comes from gu and ru. Gu means darkness or ignorance, and ru means remover of darkness or misinformation. So you are one such guru, sir, a very rare guru. Thank you for all your blessings that you have been giving us. A very warm welcome to Honorable, respected Satyanarayana ji. What should I say? An iconic entrepreneur, or maybe that's an understatement. An iconic entrepreneur who has understood Vigyan, science, who has understood Navachar, innovation, who has understood and imbibed Udyamshilta, entrepreneurship, who has understood and imbibed Srajanshilta, creativity, who has imbibed philanthropy, and who has imbibed simplicity. And I have to be very honest to you and everyone in this forum. This combination, combining all these capabilities, or let me say virtues, is truly rare. And we are all blessed, Shri Satyanarayana ji, to have you here. Thank you for consenting. Thank you for making all of us proud. Thank you for making Bharat proud, sir. भाई साहब ने हमको कहा है कि हम राष्ट्रभाषा का उपयोग करेंगे. और आपको इस सत्र के बाद समझ में आएगा, पहले दूसरे तीसरे प्रश्न से समझ में आएगा कि कितनी गहराई है ऐसे एक व्यक्तिमत्व में. इतनी गहराइयां हैं, इतना सुन सकते हैं हम, लगातार सुन सकते हैं, पर सत्यनारायण जी पब्लिक में नहीं आते, पर कर्मयोगी है, बहुत बड़े कर्मयोगी, हम जानेंगे. भाई साहब, आपकी कंपनी अभी 1 लाख करोड़ की मूल्यांकन की है, 1 लाख करोड़ वैल्यूएशन, मार्केट कैप, लिस्टेड कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज. काफी सारे लोग जानते हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स हैं,
मैनेजमेंट स्टूडेंट्स है, द मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनी इज मोर देन 1 लाख करोड़, $12 बिलियन। तो 1 लाख करोड़ की मूल्यांकन की कंपनी आप चलाते हैं, 51 देशों में निर्यात करते हैं। यू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट्स टू 51 कंट्रीज, 51 कंट्रीज माय डियर फ्रेंड्स। 10 से भी अधिक देशों में आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपकी फैक्ट्रियां हैं, 10,000 आपके यहाँ लोग काम करते हैं, 10,000 टॉप टैलेंट काम करते हैं। और ये सब तो हमने फोर्ब्स मैगजीन, CNBC, हितवाद, इन सब में पढ़ा है। आज हम कुछ नया जानना चाहेंगे। आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे भाई साहब की भिलवाड़ा से लेके बलारशा की का जर्नी कैसा रहा। आप भिलवाड़ा से बलारशा आए और बलारशा में कुछ संघर्ष के दिन बिताए, कुछ उसके बारे में बताइए। कुछ संघर्ष कैसे रहे, क्या किस प्रकार के संघर्ष किए आपने, और एक एंटरप्रेन्योरशिप, सबकी इच्छा है कि एक स्टार्टअप बनाए, एंटरप्रेन्योरशिप बनाए, और ये संघर्ष क्या होता है, मतलब किस किस्म के संघर्ष से। ऐसा नहीं कि एक आइडिया ले लिए, बिजनेस प्लान बना दिए, पिच डेक बना दिए, IIM के इनफेड में प्रेजेंट कर दिए, 50 लाख मिल गया। ये ऐसा संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष जानना बहुत आवश्यक है भाई साहब। जैसे आपने बताया कि सफलता, एक्चुअली जो आपने बताया कि 1 लाख करोड़ की कंपनी वहां से आना, ये सफलता एक फल है, लेकिन बाकी के इसके पीछे जो संघर्ष है, वो संघर्ष एक प्रकृति का नियम है। संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि उस संघर्ष के समय में यदि हमारा मनोबल बना रहता है और यदि हमारे अंदर विश्वास है और वो विश्वास बना रहे, तो मित्रों हर मनुष्य के जीवन में संघर्ष और फेलियर से जितनी भी ये चीजें हैं वो आना नितांत संभव है। लेकिन हम उनको किस रूप में देखते हैं? संघर्ष एक तरह से भगवान का एक दिया हुआ वरदान है। मित्रों, मैं समझता हूँ कि शायद यदि वो संघर्ष जीवन में नहीं होता तो जो आज जो कठिनाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी जो संघर्ष करना पड़ रहा है, वो शायद उसके योग्य नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी जीवन के व्यक्ति में संघर्ष आना और उसको वो किस भाव से, उसको किस रूप में लेता है, दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत बढ़िया, आई थिंक ताली बजते रहनी चाहिए। ताली इसीलिए बजती रहनी चाहिए कि भाई साहब को ताली की आवश्यकता नहीं है, ताली हमारे लिए आवश्यक है। ताली हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि इनकी जीवन की जो कथा है, बहुत सुंदर कथा है, हम सब जानना चाहेंगे भाई साहब। और छोटी छोटी चीजें आप बताएं, बलारशाह में आपने कैसे शुरुआत करी? आप वैन चलाते थे, आपने एक्सप्लोसिव का पहला काम लिया, ये कैसे शुरुआत हुई? थोड़ी बारीकियों से बताइए और कैसे कैसे रहा ये बात एक अपने आप में सच्चाई है कि मेरी अपनी कोई एजुकेशन नहीं थी। मैं 10th क्लास पढ़ के उसके बाद में कोई मेरी एजुकेशन, जो भी उसके पीछे समाऊ, जो भी कारण हो, मैं 10वीं के बाद पढ़ नहीं पाया। मेरी कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन कुछ कोशिश की मैंने। मैं जहाँ पर मेरा जन्म स्थान है भिलवाड़ा, वहां पर मैंने 2-3 बिजनेस किए, लेकिन कुछ मेहनत सब कुछ करने के बाद में उसमें सफलता नहीं मिली। और कुछ उस समय में जब 400-500 रुपए भी किसी का लोन हो गया या कर्जा हो गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा भविष्य नहीं है। यहाँ पर मेरे दूर के रिश्तेदार थे बल्लारसा में, तो मैं बिगर कुछ सोचे, मैं, हमारे पास एक छोटी गाड़ी थी जो हमने मिलिट्री में जो डिस्पोजल से ली थी उस समय में 3,000 रुपए में, वो गाड़ी लेके आ गया था। तो फिर उसके बाद में हुआ ये कि उस समय में शायद राजीव गांधी इस समय नागपुर में आए थे, और वो गाड़ी कांग्रेस से जो हमारे लीडर थे पुंगलिया जी, उन्होंने मांग के ले गए। लेकिन जब वो गाड़ी वापस आई तो गाड़ी रास्ते में एक्सीडेंट हो गई, 7-8 आदमी मर गए। वो जो मेरे लिए, लेकिन एक वो तो था, लेकिन एक मेरे जो
जीविका चलाने का या जो कुछ थोड़ा बहुत साधन था वो भी खत्म हो गया। लेकिन मित्रों, मुझे जब मैं जिस जो मेरा भिलवाड़ा जन्म स्थान है वहां पर सबसे ज्यादा देश में ट्रैक्टर कंप्रेसर जो पूरे देश के अंदर ये जो कुएं गहरे करने का काम चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, तो उसके बारे में मेरे को बहुत अच्छी जानकारी थी और मैं एक्सप्लोजिव के बिजनेस को समझता था। और उस समय में एक्सप्लोजिव जो था इतनी क्राइसिस थी कि कभी कभी सरकार को इंपोर्ट करना पड़ता था। तो जो मुझे थोड़ा बहुत अनुभव था, तो मैंने पता चला कि मैं जब बल्लारसा चंद्रपुर पास पास में है, बल्लारसा से चंद्रपुर आना जाना रहता था, तो वहां पर मुझे पता चला कि एक मैगजीन डीलर है जिनके पास एक्सप्लोजिव का लाइसेंस था और वो कुछ काम नहीं करते थे। मैंने उनसे जाकर मिला, मैंने उनको बोला कि चाचा जी आप तो कुछ काम करते नहीं है और मैं ये आपकी जो मैगजीन है, जो गोडाउन है, वो मुझे किराए से दे दीजिए। तो वो बिल्कुल तैयार हो गए कि बेटा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे लेकिन 1,000 रुपये महीने का आप किराया दे दिया करो। तो ठीक है, मैंने कहा कि मैं चाचा जी कल मिलता हूँ। लेकिन मित्रों सही बात तो यह है कि मेरे पास वो 1,000 रुपये देने के लिए भी वो पैसे नहीं थे। तो फिर मैं दूसरी बार शाम को उनसे मिला कि चाचा जी आपने जो बात बताई वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तो भिलवाड़ा का रहने वाला हूँ और मेरे पास यहाँ पर पैसा नहीं। जब भी मैं भिलवाड़ा जाऊंगा या वहां से मैं बुलाने में मुझे टाइम लगेगा। तो पता नहीं उनके मुंह से सहज ही निकला कि कोई बात नहीं बेटा, मेरे को हर महीने के बजाय हर क्वार्टर में या 3 महीने में 3 महीने के अंदर तुम पैसा दे दिया करो। तो जब भगवान की कृपा होती है तो वो स्वयं ने आके कैसे किस रूप में आता है, तो मेरे को कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भाई वो 1,000 रुपये लेने के बजाय उनका ये मानना कि तुम मुझे क्वार्टरली या 3 महीने में दे देना, ये मित्रों मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार था। और मेरा अपना जीवन का एक जो आगे बढ़ने का जो जो मार्ग था वो वहां से प्रशस्त हुआ। इसमें उसके बाद में मुझे ये बिजनेस करने का, ये आगे इसे बढ़ने का मुझे उस अवसर बहुत मिला। बढ़िया, फिर से ताली हो जाए। देखिए, when we talk about startups, entrepreneurship, we often say we should do a lot of research, deep research. Global companies are formed top down. They do a lot of research and then build. हमारे पास भाई साहब है जिन्होंने बॉटम्स अप काम किया। उन्होंने प्रॉब्लम को देखा, अपॉर्चुनिटी को देखा, आजू बाजू में देखा और उससे एक इतना बड़ा व्यवसाय बनाया। कितना बड़ा व्यवसाय बनाया? आज एक डेकाकॉन है। डेकाकॉन, बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं। व्हाट इज अ डेकाकॉन? विल मेक इट more interactive and fun, guys. What do you mean by decacorn? Anyone? Unicorn, 1 billion. Decacorn, 10 billion. So this company is $12 billion. It's a decacorn. नागपुर में बहुत से लोग बोलते यूनिकॉर्न नहीं है। मैं बोलता हूं कि भाई आप लोग का इग्नोरेंस है। We have a decacorn here, a $10 billion, and we wish you it will become 100 billion. Sir, it will become 100 billion. That is the potential that this company holds. थोड़ा आगे चलते हैं सर। आप उस दौरान रेलवे स्टेशन में भी सोए, कुछ रेलवे स्टेशन में बहुत सारा समय बिताए, कुछ उसके बारे में बताइए। ये फॉर्मेटिव ईयर्स होते कैसे? क्योंकि सारे बच्चे अभी फॉर्मेटिव एज में हैं अभी। देखिए, मैं ये वहां पर जैसे भीलवाड़ा में मैं अपने जन्म स्थान में कुछ नहीं था, तो जब यहाँ पर बल्लारशाह आया तो कोई मैं अकेला था। एक हमारे दूर के रिलेटिव थे, वो माइंस मैनेजर थे, लेकिन उनके घर पे बहुत बहुत सज्जन, बहुत ज्यादा वो प्रेम रखते थे। जितना दूर का रिलेशन था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो मेरे बहुत ही क्लोज रिलेशन में है। तो मैं ज्यादातर तो वैसे उनके वहीं रहना, करना, सोना वहीं था। लेकिन मन में एक एक ये
कभी कभी मन में ये आता आता था कि भाई ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ गैप देना ठीक नहीं है। तो मैं जो काम करता था उसके बाद में मैंने ये निश्चित किया कि कुछ जान पहचान, कुछ माइंस मैनेजर होने की वजह से जो बल्लार सा इतना छोटा गांव है कि वहाँ के जो अ, रेलवे में काम करने वाले, चाहे वो टिकट चेकर हो, स्टेशन मास्टर हो, उनसे ऐसी पहचान हो गई कि फिर मैं धीरे धीरे, क्योंकि यदि कोई ट्रेन आती है और बाहर निकलते हैं और आपके पास में टिकट नहीं है तो ये बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतनी पहचान थी कि मैं वहां पर सोना, और उनके जो वेटिंग रूम थे, सेकंड क्लास, वहां तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के, उसमें अपना जो भी सुबह का कार्यक्रम निपटा के फिर वापस वहीं से निपट के मैं अपने काम पे लग जाता था। तो मित्रों, जब आदमी की भगवान ने हर मनुष्य को एक ऐसा बनाया है कि चाहे उस समय की वो परिस्थिति, यदि उसका भगवान पर या किसी शक्ति पर विश्वास है तो कोई ना कोई चीज अपने आप आ जाती है। जैसे आदमी को दिखता नहीं, जन्म से ही नहीं दिखता है, लेकिन उसमें एक केवल काम दिखने का नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रतिभाएं उसमें आ जाती है। बहुत बार अपने अपने देखते हैं कि अ, आज हमारे यहाँ पर 10 डिग्री टेम्परेचर हो या 6 डिग्री टेम्परेचर हो तो उसमें हम सर्दी सहन नहीं कर पाते, लेकिन यही ऐसा है कि -40 में, -30 में हमारे आदमी वहां पर रहते हैं। तो ये मित्रों, ये एक भगवान ने मनुष्य को एक ऐसा बनाया है कि ये शरीर से ज्यादा ये इसका जो मनुष्य का जो भी कुछ स्वरूप है वो शरीर से ज्यादा मन से उसका वो है। तो जैसे आदमी सोच लेता है वैसा ही आदमी बन जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूटीफुल। आई थिंक वन मोर राउंड ऑफ अप्लॉज। भाई साहब, इसके बाद आपने मैगजीन का वेयर हाउस लिया, छोटा सा ये लिया, फिर ट्रेडर बने आप और देश के सबसे बड़े ट्रेडर बने एक्सप्लोसिव्स के। और इससे नहीं रुके आप, आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक सपना बुना कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा अभी। और कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है आज। आप अगर जानते होंगे अमरावती रोड पर 2400 हेक्टेयर, एकड़ नहीं, 2400 हेक्टेयर लैंड है, उस पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाया आपने। और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं भाई साहब आप। किस किस्म के प्रोडक्ट्स जो compete करते हैं 100-year-old अमेरिकन कंपनीज, डिफेंस कंपनीज के साथ में, है ना, बहुत बड़े $1 billion कंपनी इजरायली टेक्नोलॉजीज के साथ में compete करते हैं एट probably 1/10 द कॉस्ट। हम चंद्रयान की बात करते हैं, हमारे सामने में खुद साक्षात सत्यनारायण जी है जो who's living this in all his products। तो ये आपको विचार कहाँ से आया ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में जाने? मित्रों, जब मैंने अपना ये एक्सप्लोजिव का बिजनेस शुरू किया तो कुछ 78-79 में किया। तो 84 के अंदर जो इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आईसीआई इंडिया लिमिटेड, उसका मुझे कंसाइनमेंटशिप पाने का एक अवसर मिला। ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन का ये था। और 84 से मैं करीब 10 साल में कुछ ऐसा हुआ कि हमारी कंपनी 10 साल के अंदर अपने देश की सबसे बड़ी एक्सप्लोजिव ट्रेडिंग कंपनी बन गई। लेकिन मैंने 94-93 से सोचना शुरू किया कि यदि मुझे भविष्य में आगे बढ़ना है तो केवल ट्रेडिंग के माध्यम से हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उस समय में काफी शॉर्टेज हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो कभी इंपोर्ट करना पड़ता है या बाकी जो इतनी क्राइसिस है, तो आने वाले दिनों में ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने बहुत सी कंपनियों को लाइसेंस दिया। तो मुझे ये लगा कि जब लाइसेंस जब दिया, जब ओपन हो गया, तो
धीरे धीरे उसका कंपटीशन बढ़ना स्वाभाविक था। जब कंपटीशन बढ़ना ये अपना हुआ तो ये भी था कि जो कंपनियां आईसीआई जैसी कंपनी जिनका इतना ज्यादा हमारे इनकम थी, जो 200 रुपए का केस 1000 रुपए में बिकता था, लेकिन देखते देखते वो काफी उनको अपने प्रोडक्ट को सेल करने में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो मैंने ये उसी समय के वो बहुत पहले ही मैंने ये निश्चित किया कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। तो मैंने 95-96 में एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के उसमें मैंने नागपुर में जहाँ हमारी मैगजीन थी, उसी मैगजीन में हमने ये इंडस्ट्री स्टार्ट की। उस समय में मुझे लगता है कि हम मेरे सहित कुल मिला के 17 आदमी थे, फिर धीरे धीरे 2-3 महीने में 40 आदमी हो गए। तो मैंने ये एक 95-96 में पहली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 साल में भारत के सब लार्जेस्ट ट्रेडर और तुरंत ही मैन्युफैक्चरिंग में आए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू से दिस। वी स्टडी इन आवर मैनेजमेंट बुक्स अबाउट कोर कॉम्पिटेंसी, राइट? वी स्टडी इन आवर स्ट्रेटजी लेसन्स अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और भाई साहब, आप 10वीं आप कहते हैं कि 10वीं पढ़े लिखे नहीं, हर बार बहुत बार कहते हैं, पर यू नो ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स एंड यू हैव बीन एम्ब्रेसिंग दिस कॉन्सेप्ट्स जो हम मैनेजमेंट की किताबों में पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं हम लोग हार्वर्ड से, स्टैनफोर्ड से, और आपने इसको नागपुर में किया है सब। ऑल दिस यू हैव डन इट इन नागपुर, एंड आफ्टर दैट यू वेंट वन स्टेप अहेड एंड टुक अ वेरी ऑडेशियस लीप। आपने एक बहुत बड़ी छलांग लिए रक्षा के क्षेत्र में जाकर, और उसकी शुरुआत कैसी हुई? डिफेंस तो इतना रेगुलेटेड क्षेत्र है, इतना कोर कॉम्पिटेंसी वाला क्षेत्र है, इसमें कैसे प्रवेश किए? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 96 में एक इंडस्ट्रीज में एसएसआई से शुरू किया, लेकिन कुछ आप उसको भगवान की कृपा समझिए या अपना व्हाटएवर जो भी योग संजोग समझिए, मैं करीब करीब 7-8 साल में 2004 में हम इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरर बन गए। 2006 में हमने पब्लिक इशू लेके आया, और 2010 तक आते आते हमने अपने कंपनी को इस रूप में एस्टेब्लिश कर लिया कि उसमें बाकी हमारे साथ में कंपटीशन में कंट्री में करीब करीब 30 कंपनी थी। लेकिन मित्रों, यदि हम अपने जीवन मूल्यों को और अपने सिद्धांतों को या अपने कुछ जो वैल्यूज को है यदि अपने ध्यान में रखते हैं, तो इस सर्कमस्टांसेस में भी आप अपने अलग पहचान बना सकते हैं। और मैंने अनुभव किया कि ये 2006 के बाद में 2010 तक, ये काफी कम पीरियड के अंदर, जब हमने अपने आप को ये देखा कि पहले तो हम जब ट्रेडिंग में थे या जब ये एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग में आए, तब मार्केट से भी पैसा लेना, बैंक से भी पैसा लेना, सब जहां जहां से जो कुछ मिल सकता है वो था। लेकिन 2006 के बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि ये सब हम परिस्थिति से ऊपर आ गए, और 2010 में ऐसा हुआ कि हमको इतना ये हो गया कि इस इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट हो, रॉ मटेरियल हो, जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जितने हम कर सकते थे वो हमने एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज में किए। तो मुझे लगता है कि हमने जितने प्रोडक्ट डेवलप किए, वर्ल्ड में जितने भी प्रोडक्ट एक्सप्लोजिव सेक्टर में जो अवेलेबल है, वो करीब करीब सभी प्रोडक्ट हमने बनाने शुरू कर दिए। हमने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया 2010 तक। 2-3 यदि अब्रोड में भी 2-3 राष्ट्रों में अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहां पर एस्टेब्लिश कर दिए। जैसा कि आपने बताया कि आज की तारीख में हमारी कंपनी
करीब 82 कंट्री से ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, और 13 कंट्री में भी, मुझे तो नहीं था, मेरे को भी अभी राघव में यही था कि भाई ये 11 कंट्री में, लेकिन अभी बात है हमारी 13 कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। रिसेंटली अभी 2 महीने पहले कजाकिस्तान में भी हमने वो किया। तो ये सब कुछ करने के पीछे मित्रों, मेरा कभी मैंने जीवन में ये कल्पना नहीं की थी कि मैं इस स्तर पर पहुंचूंगा। मैं आपको कि ऐसा कोई लोग भले ही कुछ बोले कि बहुत विजनरी है, बहुत अच्छा प्लान करते हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन मैं जो सच्चाई है कि मैंने अपने कभी कल्पना नहीं की कि मैं इस स्तर पर पहुंचूंगा। लेकिन मैंने ये बात मेरे मन में थी कि जो मेरी अपेक्षा थी उससे ज्यादा भगवान ने यदि मुझे दिया है तो देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। मित्रों, ये एक वेल नोन फैक्ट है, चाहे वो किसी चीफ ऑफ आर्मी हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, ये सबका आज के 15 साल पहले करीब यही स्टेटमेंट था, और आज भी है, कि हमारा देश 70% जो डिफेंस के ऊपर और पर्टिकुलर एमुनेशन के ऊपर बाहर निर्भर था, और वो जो 30% जो है उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स के लिए हम विदेशों पर निर्भर रहते थे। तो मेरा यह सोचना था कि ये, जैसा आपने बताया, कि ये डिफेंस सेक्टर एक ऐसा है कि इसमें एंट्री पाना या इंडक्शन होना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा कठिन है। क्योंकि मित्रों, जब हमने 2010 में जब कंपनी की शुरुआत की थी एमुनेशन बनाने की, उस समय में सरकार का अपने पास भी कोई लाइसेंस या कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज एमुनेशन में आ सकती है, इसका भी कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था कि जब देश में आज 70% से ज्यादा इंपोर्ट करती है, और उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट पर हमारा देश निर्भर है, तो कोई भी वो आज नहीं तो कल, उस समय में जब हमने 2010 में जब ये अपना शुरू किया था एसएसआई सेक्टर में, मतलब 2010 में जब ये ठीक हो गए, तो 2010 में मैंने निश्चित किया कि चाहे कोई भी हो, ये सरकार हो चाहे दूसरी सरकार आए, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, वो सोचेगा कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ना कोई डिफेंस सेक्टर या एमुनेशन आना चाहिए। यही सोच के मैंने उसी समय से आज करीब 2010 करीब 600-700 करोड़ रुपए लगाए, और मित्रों करीब 2021 तक हर साल का 40 से 45 करोड़ रुपया कैश फ्लो था। लेकिन चूंकि हमारी बाकी की जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो उसको कर सकती थी, और दूसरी चीजें के परिवार में, जैसे मेरे एक बेटा है मनीष, और बाकी परिवार वालों का इतना मोरल सपोर्ट था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं इसको कंटिन्यू क्यों, क्योंकि ये सामने उनको भी कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्टली झूठ बोलना कि भाई नहीं, आज नहीं तो कल हमारे को इतना बिजनेस आएगा, अभी सरकार ये सोच रही है। तो ये होते होते टाइम लगा, क्योंकि 2014 में लाइसेंस भी हमको मिल गया। तो ये जरूर एक बहुत ही स्ट्रगल का टाइम था। लेकिन मित्रों, मैंने ये सोचा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके पहले पता नहीं कितने व्यक्ति, कितने परिवार ऐसे होंगे जो हमारे देश को स्वाधीनता दिलाने में उन्होंने अपने स्वयं का, पूरे परिवार का बलिदान कर दिया। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पास तो 100 रुपए है, यदि वो 100 रुपए में से 20-25 रुपए चले भी जाते हैं, तब भी किसी न किसी को तो ये काम करना चाहिए। क्योंकि यह काम कहीं पर भी यदि इसी कारण से शुरुआत नहीं हुई तो फिर ये कभी शुरुआत नहीं होगी। केवल एक मन में एक ऐसा दृढ़ विश्वास था कि आज नहीं तो कल कोई भी ऑफिसर, कोई भी सरकार ये सोचेंगी और इसको जरूर ये सिस्टम ब्रेक होगा। यही विश्वास को ध्यान में रखते हुए मैंने हरदम इसमें में काम करता था। A big round of applause for such a great nationalistic thought.
Isn't this nationalism, friends? An entrepreneur like this are not made every day. Satyanarayan ji ventured into defense primarily because 70-80% of defense was imported. हम लोग डिफेंस जैसे क्रिटिकल इनपुट्स एम्यूनिशंस इंपोर्ट करते थे. Look at the national hazard, national security threat that India was living on. And today, solar industries is exporting to 82 countries. Can you see the difference? That is the impact, sir, you have created. मित्रों, हमारे यहाँ पर एक एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज में नॉन इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, उसमें दोनों चीजें यूज होती है, पीईटीएन एंड एचएमएक्स, दो केमिकल. लेकिन हमने सोचा कि पीईटीएन ज्यादा उतना रिलायबल नहीं था, एचएमएक्स था, उसको इंपोर्ट करने का भी बड़ा प्रॉब्लम था. एक डीआरडीओ एक ऐसी यूनिट थी, टीबीआरएल चंडीगढ़, उनके पास एक छोटा सा यूनिट था. हमने उनको काफी उनको परस्यू किया, हमने लेटर लिखा. 2 साल तक हमने मेहनत करने के बाद भी फाइनली डीआरडीओ है replied us कि भाई due to the strategic project we cannot provide you this the approval or we cannot give you the TOT of the HMX. लेकिन आप देखिए ये सब कुछ मैंने करने के बाद भी उसका नहीं मिलना भी एक भगवान की कैसे कृपा होती है. मैं आपको ये अपने आप में एक सही घटना है कि उनका 2 साल मेहनत करने के बाद भी जब उन्होंने रिग्रेट कर दिया, लेकिन हमने ये सोचा कि मुझे किसी भी हालत में मुझे ये यूनिट या फैसिलिटी हमारे देश में होना चाहिए. तो हमने काफी इधर उधर किया, जानकारी प्राप्त की. तो सबसे अच्छी यूनिट बहुत सारे कुछ कुछ देश बनाते हैं, पर सबसे अच्छी जो टेक्नोलॉजी है वो बोफोर्स स्वीडन की थी. हमने वहां पर 2-1 साइंटिस्ट को वहां पर हमने कांटेक्ट किया, डॉक्टर इंगवार, जो वहां पर डायरेक्टर टेक्निकल एंड डायरेक्टर प्रोडक्शन थे. हमने पूरा, बाकी तो ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन फाइनली उन्होंने वहां से रिजाइन किया. रिजाइन करने के बाद में उन्होंने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया. मित्रों, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन उस समय हम उनको आज के करीब 13-14 साल पहले 22 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे हमने उनको रखा था. लेकिन क्योंकि हमारे से 8 साल पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने एचएमएक्स का प्लान किया, उन्होंने अपना प्लांट भी लगाना चालू कर दिया. लेकिन उनके पास में जो टेक्नोलॉजी तो वो इटली की कंपनी की थी, वो मुझे पता था कि वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है, और वो टेक्नोलॉजी से जो हम बाकी के हाई एनर्जी मटेरियल से जो बाकी के कंपोनेंट्स और जो बनना है उससे बहुत मुश्किल है. और मित्रों, खैर किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो अभी म्यूनिश इंडिया लिमिटेड हो गई, लेकिन आज भी हम उनको सप्लाई कर रहे हैं. कोई भी कारण रहा हो, क्योंकि सरकार की अपनी मजबूरियां, अपने लिमिटेशन, अपने रिजर्वेशन होते हैं. उन्होंने हमसे 8 साल पहले शुरू किया, लेकिन अभी 3-4 साल पहले उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन समहाउ अभी भी वो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो नहीं कर पाए. लेकिन मित्रों, मैं ये बता रहा था कि जो डीआरडीओ ने हमको किया, तो हमने जो फिर उनको साइंटिस्ट को अपॉइंट करने के बाद में हमने से पहले एक 50 टन का प्लांट लगाया. उसके बाद में मित्रों हमने 300 टन पर एनम का प्लांट लगाया, जो आज के तारीख में विश्व का सबसे बड़ा प्रोडक्शन का एक प्लांट है. और उसको भी हम करीब 5-6 महीने में इस एचएमएक्स प्लांट को भी इसकी कैपेसिटी और डबल कर रहे हैं. और मित्रों, जैसा कि रामाकृष्णा जी ने बताया कि ये जो हाई एनर्जी मटेरियल है, ये हमारा देश 100% इंपोर्ट के ऊपर निर्भर करता था. जो भी हमारे यहाँ पर वारहेड बनते हैं, या जैसे टिपिकल जो एयर बम्स या जो बाकी की चीजें बनती है, और उसमें जो एचएमएक्स लगता है, उसको स्वीडन या रशिया से इंपोर्ट करते थे. लेकिन आज ये मैं
अपना एक गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये हमारे अपने लिए और देश के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि मित्रों आज हम जितना हम जो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट बनाने के बाद आज हमारा करीब 80% जो प्रोडक्शन हाई एनर्जी का है वो एक्सपोर्ट है। और आज की तारीख में इजराइल, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, ये उनको हम एक्सपोर्ट उनके अलावा भी काफी देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये उनके लिए आज की तारीख में जब से ये अजरबैजान और इनका अर्मीनिया का जो वार हुआ, उसके बाद में जो रशिया और यूक्रेन का वार हुआ, मित्रों पूरे विश्व में एमुनेशन की इतना ज्यादा शॉर्टेज हो गई। लेकिन ये पिछले 25 वर्षों में हाई एनर्जी मटेरियल या जो पर्टिकुलर ये जो है अभी कहीं किसी ने लगाया नहीं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन ये हमारे लिए नहीं, ये मित्रों आज ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि जहां हमारा देश 100% इम्पोर्ट पर निर्भर था, आज जो विकसित कंट्री जो मतलब इजराइल, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, वो हमारे यहाँ पर डिपेंड है। ये हमारे लिए देश के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब अभी थोड़ा हम टैलेंट की ओर जाते हैं, मैन पावर, टैलेंट। नागपुर में और तो कोई डिफेंस कंपनी नहीं, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो इतना कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे आप काम कर रहे हैं, ग्लोबल स्केल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट के बाद में उसको भी डबल कर रहे हैं। तो आप टैलेंट को कैसे अक्वायर कर रहे हैं, टैलेंट को कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए सबसे एक्सक्लूसिव एक तो वैसे भी बहुत हजार और सेंसिटिव इंडस्ट्री है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जो डिफेंस और डिफेंस में भी जो एमुनेशन है, ये अपने आप में एक इतना क्रिटिकल और इतना स्पेशलाइज सेक्टर है कि उसके बारे में किसी भी चीज में कंप्रोमाइज आप नहीं कर सकते। लेकिन जो आपने बताया कि इन टैलेंट को कैसे लाना और इनको कैसे रखना, ये अपने आप में आज भी हमारे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मित्रों पूरे देश में एमुनेशन बनाने के लिए केवल एक हमारे यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। अदरवाइज या तो हम इंपोर्ट करते थे या इंपोर्ट करते हैं, या जो मैन्युफैक्चरिंग में है एमुनेशन में वो केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसको अभी कॉर्पोरेटाइजेशन होने के बाद में एमुनेशन इंडिया लिमिटेड हो गया। तो इसका टैलेंट मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मित्रों जब आदमी का दृढ़ संकल्प हो तो मुझे लगता है कि इस संसार में संकल्प से बड़ी कोई भी चीज नहीं हो सकती। यदि हम संकल्प कर लें तो मुझे लगता है कि ये सहज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि हम सबसे दी बेस्ट से कम में यदि समझौता करना बंद कर देते हैं तो मित्रों एक दिन हम दी बेस्ट को प्राप्त कर लेते हैं। यह मेरे अपने जीवन का अनुभव है। बहुत सुंदर भाई साहब, क्योंकि टैलेंट की बात की उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछते हैं। अभी तो 3 पीढ़ियां हैं सोलर इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। आपके सुपुत्र मनीष जी है, और यहाँ पर फ्रंट रो में राघव है, ग्रैंडसन ऑफ, थोड़ा खड़े हो जाएंगे आप, हेलो कर लेंगे, दे विल बी वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, यू गाइस कैन कैच अप विद हिम आफ्टर दिस सेशन। तो 3 पीढ़ियां काम कर रही हैं और तीनों मतलब तालमेल में काम कर रहे हैं। तो एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप मनीष जी, आपके पुत्र मनीष जी से कंफर्टेबल ज्यादा है कि राघव से ज्यादा कंफर्टेबल है काम करने में? देखिए ये जितने भी ये चीजें हैं, ये आदमी का इसका सीधा रिलेशन चिंतन से, मन से, ये इसका है। आदमी जैसा सोचता है, लेकिन निश्चित रूप से जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि धन से मूल से ब्याज प्यारा होता तो डेफिनेटली
मनीष मूल है, तो ये ब्याज है तो मूल से ब्याज तो जाओ, वो उसका एक ये है, प्रकृति का नियम है। बहुत सुंदर, तो एक मारवाड़ी तरीके लेकिन ऐसा है कि आज मैं ये भाग्यशाली हूँ कि 3 पीढ़ियों का एक साथ रहना और एक साथ काम करना। नहीं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि हर आदमी के अपने अपने विचारों में भिन्नता होती है। कोई ये विचार, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें बहुत सेंसिटिव है, हजार्ड है, रिस्की है। आने बहुत सारी जो जनरेशन है, जो हमारे सामने जो बाकी भी जो 30 कंपनियां हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे हो गए जिनकी कंपनी, जिनके बच्चे इसके अंदर नहीं आए। तो ये स्वाभाविक है, लेकिन हमारा अभी इसमें आपस में एक उद्देश्य है कि हम इसके अंदर जो और क्या क्या कर सकते हैं, और इसी का नतीजा है कि हम आज इस स्तर पर, इस परिणाम पर पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग कुछ ऑडियंस क्वेश्चन लेंगे, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, पर कुछ ऑडियंस क्वेश्चन लेंगे, मैनेजमेंट क्वेश्चंस लेंगे, और थोड़ा सा ऐसा इंटरचेंजेबल कुछ करेंगे। किसी को अगर प्रश्न होगा, एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स। यस, कैन समवन पास ऑन द माइक? प्लीज इंट्रोड्यूस क्विक, आप कौन से इसमें हैं, और कोई प्रश्न है कि आप सोचना चाहेंगे, और तब तक हम आगे बढ़े। तो सोच लीजिए आप प्रश्न, यू विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस। आप ही पूछा। हाँ भाई साहब, भाई साहब, आपके साथ जो करीबी लोग हैं जो काम करते हैं, वो कहते हैं, करीबी लोग जो आपके साथ काम करते हैं, वो कहते हैं कि आपकी शैली, लिखने की शैली, पत्र लिखने की शैली बहुत सटीक है। मतलब सत्यनारायण सर कैन राइट very powerful and effective letters to Honorable Prime Minister also, to the Chief of Army also, to a student also, to an employee also. This writing skill comes from lot of finesse. मतलब इसमें राइटिंग, एक भाषा का सिर्फ ज्ञान नहीं होने की आवश्यकता है, इसमें इतने सारे चीजों की ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। ये बात निश्चित है कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि मेरा बेसिक एजुकेशन कुछ नहीं है, लेकिन मित्रों एक पैशन है कि आप किसी से बात करते हैं, आप किसी को अपनी बात बताना चाहते हैं, या जो चीज लिखते हैं उसमें आपको अपने, क्योंकि एक ऐसी, ये भी एक जैसे लिखना कला है, बोलना कला है, जानना कला है। तो ये सब कोई आदमी को बहुत ज्यादा नॉलेज हो और वो बहुत ज्यादा अच्छा ड्राफ्टिंग हो, ऐसा मैंने देखा कि बहुत अंग्रेजी जो जानते हैं वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान हो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो मैंने ये देखा कि बहुत हमारे भी, क्योंकि एक हमारे, मेरे को लगता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे कम पढ़ा लिखा मैं ही हूँ। सर हमारे यहाँ पर चाहे वो आईआईटी चेन्नई हो, आईआईटी कानपुर हो, आईआईटी खड़गपुर हो, बिट्स हो, एलआईटी हो, यहाँ से करीब करीब मैं समझता हूँ कि 100 से करीब ज्यादा जो आईआईटी से एमटेक और डॉक्टरेट है वो है। लेकिन उसमें से बाकी जो अपने अपने सब्जेक्ट में उनकी अपनी एक्सपर्टाइज है। लेकिन बात यहाँ पर आपने जो लिखने की है, तो मैं बहुत बार अब तो ये मेरा पैशन हो गया, मैं समझने भी लग गया कि क्या मैं लिख नहीं सकता हूँ, पर उसमें मैं करेक्शन करके आज भी मुझे किसी एक सबसे बड़े डिग्नेटरीज को यहाँ पर बुलाना था, लेकिन उसको 2 दिन से मैं ठीक कर रहा हूँ अभी जाके। तो ये एक पेशेंट की बात है कि आप जो लिख रहे हैं, आप उसको क्या व्यक्त करना चाहते हैं, वो व्यक्त करना एक वो भाषा आने के साथ साथ वो भाषा के अंदर वो भाव आना चाहिए। ये एक सबसे महत्वपूर्ण है।
तो ये बात पक्की है कि मुझे भाषा का पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन उस भाषा के माध्यम से आपको सामने वाले व्यक्ति को क्या बात बताना है, ये मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया। बस इसी की वजह से मैं ये जो एक पैशन बन गया कि मुझे चाहे किसी छोटे व्यक्ति को लिखना पड़े या बड़े आदमी को लिखना पड़े, लेकिन जब तक वो लेटर मैं अपने हिसाब से नहीं हो तो मैं थोड़ा इनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ। तो मैं तब से मेरा ये थोड़ा सा ये मेरा शौक पैशन आप कुछ भी समझिए, और उसके अंदर ही हमारा ये शुरू हो गया था। भाई साहब, आप इन द वर्ल्ड ऑफ एआई यू आर अ वेरी बिग कंपटीशन टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के प्रतिद्वंद आप तो इतना सुंदर बनाते, चैट जीपीटी नहीं बना पाएगा ऐसा। किसी को कोई प्रश्न है? मैं आगे बढ़ूं। हाँ, हेलो सर। तो आपने 1995 में जैसे ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट किया था, तो आज के टाइम पे जैसे हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, पूरा टेक का जमाना है, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या कठिनाइयां आपने फेस की वो टाइम पे, और ये जो करंट टाइम है उसमें क्या हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में तो। मित्रों, जैसे आपने बताया कि किन किन किसी भी क्षेत्र से हम किसी अलग क्षेत्र में या उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मित्रों हमारे जीवन में मैंने अपने देखा कि हम चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, वैसे सक्सेस का कोई सेट कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, लेकिन मित्रों सफलता का यदि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना हो तो उसका केवल एक ही नियम है, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रबल संकल्प। मित्रों किसी भी चीज में यदि इच्छा शक्ति है और उसका संकल्प दृढ़ है, यदि ये दोनों चीजें हम साथ साथ लेके चलते हैं, तो मित्रों अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना निश्चित है। धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर नमस्ते। पिछले 10-15 सालों में स्टार्टअप बने, स्टार्टअप की संख्या बनने की संख्या जितनी ऊपर गई थी, छोटे समय में वो धड़ाम से नीचे भी आ गई थी। आसान भाषा में पूछना चाहूंगा कि बिजनेस की आत्मा क्या है? आपने जीरो से स्टार्ट किया, बिलियन तक पहुंचे, सबका सपना है बिलियन बनने का, लेकिन वो जो आत्मा होती है बिजनेस में, जिसमें सब जितनी आईआईएम में बैठ के सारा जो स्टैटिस्टिक विज्ञान जो भी होगा बिजनेस का, तो आप सरल भाषा में क्या बताएंगे बिजनेस के बारे में? मैं समझा नहीं। बिजनेस करने का निचोड़ क्या है? नहीं सर, निचोड़ से ज्यादा वो कैसा किया जाए कि ये स्टेप अगर आप करते हो तो आप निश्चितता से चले जाएंगे। दो तीन बिंदु। मित्रों मैं समझ, देखिए एक तो दोनों चीजें हैं, हम कुछ भी करते हैं तो यदि हमारे इसके पीछे जो जीवन मूल्य है, जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो इमीडिएट कुछ भी करके सक्सेस पाना और एक उसको अपने जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर चलकर करना, तभी हम लंबे समय तक कर सकते हैं। लेकिन ये बात अपने को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि यदि हम अपने जीवन मूल्यों को ध्यान में रखते हैं, अपने सिद्धांतों के ऊपर यदि ध्यान रखते हैं, तो मित्रों एक देवी शक्तियां इतनी तत्पर रहती है जो हमको हर कदम पर साथ देने के लिए तैयार रहती है। और मित्रों लेकिन देवी शक्ति जब भी अपने किसी भी व्यक्ति को कुछ देना चाहती है तो वो ये वो सोचती है कि इसमें उसकी पात्रता है कि नहीं, उसमें दृढ़ता, उसके अंदर उसकी पात्रता, ये जब तक नहीं हो उसकी वो परीक्षा लेती है। क्योंकि यदि उसमें हमारा उद्देश्य कितना बड़ा है, हमारा जो भी लक्ष्य कितना बड़ा है, उसके अनुरूप यदि हमारे पास उतने साधन नहीं है, उसके अनुरूप हमारे में पात्रता नहीं है, तो फिर हम उसको ठीक से रख नहीं पाएंगे। तो हम अपने यदि हम दोनों चीजें साथ में हैं तो ये निश्चित रूप से देवी शक्ति हमारे साथ में है, पर देवी शक्ति जो है ये हमारी पात्रता का जो ये परीक्षा लेती है,
ये पात्रता का मेरे को लगता है कि मूल स्रोत जो है हमारी विद्या है। तो हम यदि इसको कैसे भी यदि उसको अपने जीवन मूल्यों को और उनको ध्यान में रखते हैं, अपने साधन अपने पात्र को तो ध्यान में रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि चाहे हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी रूप में काम करें, हमको सफलता मिलना चाहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सत्यनारायण जी। मैं सतीश वटे, अध्यक्ष विज्ञान भारती। बाकी दोनों के भी नाम लिखवा लेना। रामा ने कहा था कि अपना इंट्रोडक्शन दे ताकि सवाल रिकॉर्ड हो जाए। सत्यनारायण जी, आप एक मिसाल है। आप यानी इन्होंने सवाल पूछा आत्मा क्या है, तो वो बोला, आत्मा सत्यनारायण जी है। इफ यू फॉलो हिम इट विल बी थ्रू दैट। सर, हम लोग अब्दुल कलाम जी के बहुत सारे लेक्चर सुने, हमें उनके साथ हमने काम करने का भी मौका मिला। वो हर वक्त कहते थे, हैंड गिव्स यू स्किल, हेयर इफ यू यूज इट एड्स प्रोफेशनलिज्म, व्हेन यू ऐड हार्ट टू दैट इट बिकम्स इनोवेशन। आपने तीनों भी किए हैं। आपने दिल से काम किया है, दिल से आपने किया है, संकल्प दिल से है। अभी नया जमाना आया है, AI ML अभी नया फंडा आ चुका है। आपकी कंपनी आज जहां पर है, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, AI तो आपको कभी ना कभी यूज करना पड़ेगा, मशीन लर्निंग भी करनी है, उसके साथ जुड़ना भी है, इनोवेशन चलते रहेंगे। व्हाट इज द लर्निंग दैट यू हैव फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स वर्ल्ड ओवर? What is that we can inculcate into culture in our culture? Because हमारे लोग काम करने में वैसे वीक है। कल्चर तो बढ़ाना है, क्योंकि unless you assign them proper duties and unless they align with you, कोई भी टीम नहीं बन सकती। टीम सॉलिड होनी चाहिए जो आप बना रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आगे क्या, क्योंकि हर वक्त ये सवाल पूछा जाता है, और आगे क्या? अंत तो होता नहीं, आगे तो चलते रहता है, इन्फिनिटी पे कोई जाता नहीं। आपसे बच्चों के लिए मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज यदि मैनेजमेंट का लड़का आफ्टर मैनेजमेंट इफ ही वांट्स टू गेट इनटू दिस टाइप ऑफ यूनिट्स वेयर इट हैज ग्रोन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आप क्या सलाह दोगे हमें कि मशीन, AI, न्यू नॉलेज, इनोवेशन, क्योंकि आपकी हर चीज में मुझे इनोवेशन दिख रहा है। इनोवेशन के अभी और आयाम कितने बाकी है? क्या सत्यनारायण जी वो देख रहे हैं जो हम में से कोई नहीं देख रहा है? और जो देख रहे हैं, क्या मनीष और राघव उसको आगे चलाने में सक्षम है? ये आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद। देखिए, वैसे मैं टेक्नोलॉजी और इसके बारे में मेरे को वो नहीं, लेकिन एक बात अवश्य ये जरूर है, मित्रों, हमें अपने देश को अपने आप को समृद्ध बनाना है, तो किसी भी समृद्ध राष्ट्र के लिए तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। उस राष्ट्र को उसकी राष्ट्र की इकोनॉमी स्ट्रांग होना, इकोनॉमी के साथ साथ में उससे ज्यादा जरूरी है कि उसके डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना। और ये दोनों चीजें जब हो सकती है कि जब आप अपने इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग हो। मित्रों, आने वाले टाइम में जो आज हम 1-2 साल के इसके अंदर जो परिवर्तन देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का, आज जो चीज हम बना रहे हैं, चाहे वो जैसे चैट GPT हो या बाकी की कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आज जो चीज हम कर रहे हैं ये 2 महीने बाद ये पुरानी हो जाती है। तो इसमें हमको बहुत ज्यादा आगे क्या सोचना पड़ेगा। और जो चीज केवल उसमें जब तक हमारे में पेशन नहीं हो, केवल यही हो कि मतलब एजुकेशन इसलिए प्राप्त करें कि भाई कैसे भी हमको अच्छा से अच्छा पद मिल जाए, अच्छे से अच्छी सर्विस मिल जाए, इससे थोड़ा सा आगे का सोचना चाहिए। क्योंकि मित्रों, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो केवल अपने को, आपके अंदर वो पैशन, वो लगन नहीं हो तो उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अभी मैं आपको बताता हूं कि सही रूप में मुझे इसकी जब से अजरबैजान और अर्मेनिया का जो वार हुआ, उसमें पता नहीं, मुझे मेरे दिमाग में आया कि जो ये वार का पूरा जो पैटर्न पूरा का पूरा चेंज होना निश्चित है।
शायद सरकार ने भी उस समय में उतना नहीं सोचा, लेकिन हमने उसी समय सोचा कि हमको यूएवी के अंदर आना है, क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा कि उनके जितने अर्मीनिया अजरबैजान के हुए तो उनके टैंक उन्होंने अपने यूएवी से कर दिया। अभी रशिया और यूक्रेन का जो है पूरा का पूरा वार पैटर्न यूएवी के अंदर चेंज हो रहा है। यूएवी बनेगा जैसे अनमैन्ड एरियल सर्विस, वो बनेंगे तो वापस एनटीपी बनेंगे। तो हमने अपना अब हमने 3 महीने पहले मतलब मतलब ये कोई प्राउड की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि उसी समय हमने ये निश्चित किया। तो वी आर द फर्स्ट कंपनी who supply to our armed forces the first system of weaponized, जबकि लास्ट करीब करीब 15-20 साल से 200-250 कंपनी काम कर रही है। मेरा उनसे कोई ये बोलना नहीं कि वो नहीं कर सकते, हमने कर लिया, लेकिन आप में जब तक उस टाइप की उस लेवल का अपने को सोच डेवलप करना पड़ेगा ही। और अभी हमने एक ऑलरेडी एक प्रपोजल दिया। जब प्रपोजल दिया था काउंटर ड्रोन सिस्टम, अभी तक जितने भी काउंटर ड्रोन सिस्टम है वो लेजर बेस्ड सिस्टम है और सॉफ्ट किल सिस्टम है। तो मित्रों, सॉफ्ट किल सिस्टम यहाँ पर तो सभी इतने कैपेबल, इतने साइंटिस्ट और सब बैठे हैं, लेकिन आप ज्यादा समझ सकते हैं कि हम ड्रोन बनाना है। यदि जो आज का जो टाइम आएगा तो वो स्वयं ड्रोन का है। 1 या 2 ड्रोन है, उनको हम लेजर सिस्टम से उनको किल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी लेजर सिस्टम से किल करना है तो उस ड्रोन को राडार से डिटेक्ट करना, जामर से उसको देखना, उसके बाद में अपना सॉफ्ट किल भेजना, कंप्यूटर से करना, ये सब में मिला के करीब करीब 10 सेकेंड लग जाते हैं। मतलब 9 से 10 सेकेंड यदि एक ड्रोन को किल करना है तो 10 सेकेंड लग जाते हैं। लेकिन यदि हमारे पास, और दूसरी चीज ये है कि मैंने सोचा कि ये जो लेजर सिस्टम है ये हाई एल्टीट्यूड हो या जब बरसात का टाइम हो, बहुत क्लाउड हो, तो ये लेजर सिस्टम काम नहीं करता है। तो मैंने ये एक पता नहीं क्या एक मन में है कि हमको हार्ड किल सिस्टम बनाना चाहिए। तो हमने एक प्रपोजल सरकार को दिया, बहुत कुछ उसमें 1 साल लगा, लेकिन उसके बाद में इंडियन आर्मी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने किया और उन्होंने अभी 2.5 साल का टाइम किया है। लेकिन मित्रों, अभी हमने 3 महीने पहले जो उसका मेन जो माइक्रो मिसाइल है, जो ये आप देखिए कि जो एक 16 फीट में 20 फीट में जो मिसाइल के अंदर जितने कंपोनेंट लगते हैं, वो हमने 4 किलो की मिसाइल बनाई है, जो ज्यादा से ज्यादा 2.5 फीट की है। और वो हमने अभी गोपालपुर में 3 महीने पहले टेस्ट की और बहुत ही सक्सेसफुल हुई। दिस वाज द मतलब फर्स्ट माइक्रो मिसाइल, आई कैन से कि दिस इज इन द वर्ल्ड। सो तो ये जो हमने अभी कर भी रहे, जैसे कि ये ज्यादा से ज्यादा हमको माइक्रो मिसाइल जो इसका मेन जो कंपोनेंट है वो हमने डेवलप कर लिया। गाइडेड मिसाइल कर लिया, अनगाइडेड भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 30 mm क्योंकि गाइडेड मिसाइल की कीमत ज्यादा होती है, हम सीकर का कर रहे हैं, सीकर की कीमत और बढ़ जाती है, क्योंकि सीकर की कीमत भी 10-12 लाख रुपए होती है। लेकिन अब किसी ड्रोन को किल करना है तो कम से कम पैसे में कैसे हो सके, तो हम रॉकेट जो विदाउट गाइडेड है, गाइडेड है, और सीकर आप तो ज्यादा समझते हैं कि जिसमें सीकर लगाया तो कहीं पर भी जाके, चाहे वो पहाड़ आ जाए, चाहे कोई एब्स्ट्रैक्ट आ जाए, तो उसको जाके वो वहीं जाके वो किल करेंगे। वो मिसाइल भी तो, लेकिन वो इतनी महंगी है, इसीलिए हम इसको ये रॉकेट सिस्टम भी इसको बना रहे हैं। तो ये पहला सिस्टम है। दूसरी सिस्टम है कि हमने एक और जिसका ये जो हमने काउंटर ड्रोन सिस्टम है, इसका नाम हमने रखा भार्गवास्त्र। तो भार्गवास्त्र आर्मी ने भी हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी एयरफोर्स ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने ग्लोबली टेंडर फ्लोट किया, क्योंकि चाहे मैं हूं या आपको कोई भी है, चाहे कितना भी डेवलप कर ले,
लेकिन उनको अपना परचेस करना है तो उनको ओपन टेंडर फ्लोट करना ही पड़ेगा, और वो करना ही चाहिए, क्योंकि मित्रों जहां पर देश के यदि अपने को सही माने में स्ट्रोंग बनाना है तो हमारा प्रोडक्ट स्ट्रोंग होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारी कॉस्ट भी कम्पिटिटिव होना चाहिए, नहीं तो हम बिजनेस में भी और बाकी भी दूसरी जगह ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। हमने एक दूसरा जो एक तो भारतवास्त्र बनाया, एक दूसरा सिस्टम हमने करीब करीब तैयार हो गया, उसमें भी 2-3 महीने लगेंगे, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। मित्रों एक आज के 10-12 साल पहले ओटावा कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर ये प्रूव हुआ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 110 मिलियन माइन बिछी हुई है, और हर साल करीब करीब हजारों से ज्यादा हर साल, चाहे वो सिविलियन हो चाहे आर्मी हो, उनके हर साल उतने व्यक्ति उनकी फेटिलिटी हो जाती है। तो हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो माइंड डिटेक्शन एंड डिस्पोजल, जो माइंड को डिटेक्ट भी करेगा और उसको डिस्पोज भी करेगा। तो ये हमने काफी हद तक इसको बना लिया है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर जो एक छोटा सा राडार है वो हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, लेकिन वो ठीक से चला नहीं, वो शायद वापस अभी आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम 2 महीने के अंदर उसको डेवलप कर लेंगे। तो जैसे आप बता रहे थे कि नॉलेज, इंटेलिजेंस, कॉम्पिटेंस अपनी जगह है, लेकिन मित्रों जहां तक कॉम्पिटेंस, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पर जितने प्रबुद्ध और अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने बहुत हर सब्जेक्ट में अपना एक स्पेशलाइजेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मित्रों इसके आगे भी जैसे आपका तो IIM है, जैसे भी हार्वर्ड की स्टडी है, कभी वो सबसे ज्यादा उनका इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा उनको इंटेलिजेंस के बाद में उन्होंने इमोशन, इमोशन के बाद में अभी स्पिरिचुअल, तो IQ के बाद में उन्होंने EQ, और EQ के बाद में उन्होंने अभी SQ लाया है। तो मित्रों ये एक हार्वर्ड जैसी इंस्टीट्यूट की स्टडी है कि केवल ज्ञान ही ज्ञान बहुत पूर्ण है, ज्ञान उसका मूल आधार है, लेकिन इस ज्ञान को मित्रों यदि हम और इससे ज्यादा उस मतलब यदि इस ज्ञान को हम केवल स्वयं के साथ साथ में उसको समाज और देश के लिए यदि सोचे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मित्रों हमारे के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां, ऐसी कुछ चीजें एनर्जी मिलती है, हम उसको आगे बहुत ज्यादा आगे ले जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने एसक्यू की बात ऐड की, इनोवेशंस बताए, आज आपने जो जो करके दिखाया है विद प्राइवेट सेक्टर, बहुत मुश्किल था वो। हम लोग विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी तो आई गई है, आप जैसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को भी मद्देनजर रखते हुए इनोवेशन और न्यू आइडियाज को भी लेते हैं। आपने ये फंडा रखा है, द ओनली सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इज कांस्टेंट चेंज एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो रोज बदलना है, एक दिन से हम भी बदलते हैं तो रोज बदलना है। तो बदलाव को आप जैसे ले रहे हैं, क्या हम आपकी जैसे लोगों की मदद से भारत को डिफेंस में विश्वगुरु बना सकते हैं? मित्रों ये बात पक्की है कि हमारे जो आज की पीढ़ी है और जो बच्चे हैं उनमें इतनी प्रतिभा है कि इस आज हम चाहे यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन विदेशों में भी जहाँ पर चाहे वो साइंस का सेक्टर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे फाइनेंस का हो, हर जगह अपने बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं, इतने अच्छा काम कर रहे हैं। तो मित्रों मुझे लगता है कि यदि जो एक राजनीतिक
bureaucratic, education, मीडिया, इवन इंडस्ट्रीज, ये केवल केवल एक माध्यम से नहीं हो सकता। इसमें जो हमारा देश आगे नहीं बढ़ा है उसमें सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। मित्रों, सब मिलकर जब तक हम ये देश के लिए नहीं सोचे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इंडस्ट्रीज का एक अपना है कि उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। ब्यूरोक्रेट की सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर भी उनकी लिमिटेशन है। पॉलिटिशियन की अपनी एक क्योंकि किसी भी चीज का मैंने देखा कि पॉलिटिशियन जो हमारा राजनीतिक तंत्र सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट यदि करना है तो उसको ब्यूरोक्रेट ही करेंगे, और उसको यूज करना है तो यूजर जो हमारी आर्मी या बाकी का जो हमारा समाज है वो करेगा। तो मतलब राइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ये यदि हर व्यक्ति के मन में ये भाव नहीं हो तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो अभी परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि मित्रों, कुछ ही वर्षों में मुझे लगता है कि हमारा देश निश्चित रूप से एक इस लेवल पर जाएगा कि जहां पर हमने कभी आज के 10 साल पहले कल्पना भी नहीं की होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसका सबसे मूल जो आधार जो हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार, यदि हम अपने विद्या, हमारी शिक्षा के साथ जोड़ देते हैं तभी ये संभव है। लेकिन यदि हम इसको केवल हमारे ज्ञान को, रिसर्च डेवलपमेंट को, साइंस को, उसमें हम बहुत आगे बढ़ते गए, चाहे पद और प्रतिष्ठा में बढ़ गए, लेकिन यदि उसके अंदर हमने यदि हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारे में संवेदना है, यदि हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो मित्रों, जो आप यूरोप की जो स्थिति है आज की तारीख में, या बाहर के देशों की स्थिति है, जिसको हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो देश आज कहाँ पर है, वो हमारी यदि हमारी संस्कृति पर यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो वो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। और ये काम मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो आपके IIM, IIT, ये सबसे बड़ा जो उसका एक सूत्र है वो हमारा शिक्षा विभाग, शिक्षा का चाहे वो कोई भी माध्यम हो, ये एक शिक्षा का माध्यम ये ऐसा है जो वो ही हमारे आने वाली जनरेशन को वो कर सकता है। लेकिन मैं खाली एक मिनट आपसे लेना चाहूंगा। लेकिन मित्रों, मैं आज की जो जनरेशन है वो इतनी प्रतिभाशाली, इतनी इंटेलिजेंट, इतने कॉम्पिटेंट है कि हम उनको अपनी बातों से और उनको प्रभावित नहीं कर सकते। मित्रों, आने वाला समय ऐसा होगा कि हमारा चरित्र कैसा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे उसके अनुसरण करेंगे, नहीं कि हम जो स्पीच देते हैं, जो संबोधन करते हैं या लोगों को बताते हैं, उस पर यदि हम ये सोचे कि हमें मेरे बोलने पर, मेरे बताने पर वो चलेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। Can I ask the सिर्फ दो प्रश्न हैं। Can I दो- ask the question? यस यस, Yes. दो आखिरी के दो प्रश्न। सत्यनारायण जी, हम IIM के प्रांगण में हैं और यहाँ व्यवस्थापन के विद्यार्थी भी है। शिक्षा के बारे में हम IIM के प्रांगण में है और व्यवस्थापन के विद्यार्थी यहाँ पे है। शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और हम ये मानते हैं कि कई यूनिवर्सिटीज आपको डिलीट देने के लिए उत्सुक भी होंगी। मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप कोई IIM या IIT से निकलते तो सोलर इंडस्ट्री की जो बढ़ने की गति है और वो जो जिस मंजिल पर पहुंची है, क्या ये यही रहती या इससे ज्यादा रहती, या किताबी ज्ञान उसमें कुछ अटकाव लाती? जिसे मित्रों, जो ज्ञान है वो किसी भी आगे बढ़ने का वो मूल भाग है, वो तो सबसे आवश्यक है। लेकिन उस ज्ञान के साथ साथ जो उसके पीछे
हमारी जो एक सोच है, जो चिंतन है, वो जब तक परिष्कृत नहीं होगा तो जब तक मुश्किल होगा। क्योंकि हमने बहुत बार देखा कि मैंने हमारी इंडस्ट्रीज में मैंने अनुभव किया कि बहुत सारे कॉम्पिटेंसी की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने देखा मित्रों बहुत कॉम्पिटेंट जो आईआईटी एमटेक से भी है, मेरा उनके प्रति किसी विशेष के प्रति वो नहीं है, लेकिन केवल शिक्षा से कॉम्पिटेंसी के साथ साथ में जब तक सिंसियरिटी नहीं हो या जब तक हमारा एटीट्यूड ठीक उसके साथ में नहीं हो, दोनों चीजें साथ में है, तो निश्चित रूप से हम किसी भी हम क्षेत्र में जाए हमारा सफल होना निश्चित है। लेकिन यदि केवल हमारे के अंदर कॉम्पिटेंसी है लेकिन हमारे के अंदर हमारा एटीट्यूड, हमारा सोचने का तरीका, हमारे में वो फायर या पैशन यदि नहीं है तो उसका फिर ज्यादा उपयोग नहीं होगा। ऐसा मेरा अपना सोचना है। सर प्रणाम भाई साहब। प्रणाम भाई साहब। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस, मैंने आपको ये सवाल है मेरा कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस को कैसा आप जोड़ रहे हैं। और मैं आपको खुद 30-35 साल के पहले मैंने देखा कि आपका आध्यात्मिक बैठक जो है, यहाँ अतुल भैया बड़े भैया भी बैठे हैं, तो आपने केवल बड़ी फैक्ट्री तो लगाई, बड़ा टीएनटी बनाया, लेकिन साथ साथ में सबसे बड़ा गायत्री यज्ञ भी आपने नागपुर में किया। यही नहीं, सीएसआर एक्टिविटीज में आपने कौन से केंद्र भी बहुत सारे लगाए, व्यसन मुक्ति केंद्र भी लगाए, और देश में सबसे बड़ा तिरंगा झंडा पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाया, जो कि पाकिस्तान से हमारा तिरंगा दिखता है। तो इसी तरह आपने बहुत काम किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि नई जनरेशन को स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक बैठक रहना बहुत जरूरी है या साइंस रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू। देखो मित्रों, ऐसा है कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू है। हमारी जो संस्कृति है वो कंप्लीट साइंटिफिक बेस है। खाली दो इसमें फर्क यह है कि विज्ञान हमको बताता है कि भाई पहले अपना विज्ञान का एक मत होता है कि पहले वो जानता है फिर मानता है, और अध्यात्म का ऐसा जो है, अध्यात्म पहले मानता है और फिर जानता है। लेकिन उसके हम डेप्थ में यदि स्टडी करें, क्योंकि वो एक लंबा विषय है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि दोनों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, जानना और मानना और मानना और जानना। लेकिन मित्रों, ये दोनों का गहराई तक सोच जाने के बाद में दोनों का एक ही अर्थ है, क्योंकि बिगर साइंस जो है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो साइंस का कोई महत्व नहीं है, और केवल विज्ञान नहीं है तो भी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। और साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के पूरक ही नहीं, मैं समझता हूं कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी हमारी जो, मैं तो अपने भारतीय संस्कृति के बारे में बोल सकता हूं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो अध्यात्म है, वो पूरा का पूरा साइंस है। हाँ, बस एक आखिरी प्रश्न और फिर हम सर एक पूछना था कि टैलेंटेड और नॉलेजेबल लेकिन अकड़ू नोटोरियस सीनियर एग्जीक्यूटिव को आप कैसा हैंडल करते हैं? दोनों, इसीलिए मैं अपना बोलना था कि टैलेंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप किसी चीज को जानते नहीं है तो उस चीज के बारे में, जो भी आपको जिस इंडस्ट्रीज के बारे में, चाहे वो केमिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो टैलेंट तो चाहिए। लेकिन मित्रों, यदि आप में टैलेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप बहुत परफेक्ट है, आप मैकेनिकल साइड में परफेक्ट है या केमिकल में है, लेकिन यदि सिंसियरिटी नहीं है और आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो एक अकेला आदमी, जब यदि उसको अकेला आदमी को सक्सेस पाना, एक लिमिटेड सक्सेस पा सकता है। यदि आपको
यदि बड़े क्षेत्र में जाना है तो आपका एटीट्यूड जब तक ठीक नहीं हो, आप अपने टीम को साथ में लेकर नहीं चल सकते हो, तो मित्रों उसमें सफलता मिलना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक छोटा सा, बहुत सारा डिमांड, एक प्रश्न बस आखिरी। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक प्रश्न पूछिए आप। एक- हम लोग 1.5 घंटे शॉर्ट है मेरे। सर मैं सर किसी भी इंडस्ट्री के लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। सर किसी भी इंडस्ट्री के लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपकी इंडस्ट्री एम्युनिशन और एक्सप्लोसिव से जुड़ी थी, एनवायरमेंट कंसर्न्स कैसे आप एड्रेस करते हैं इसमें? एनवायरमेंटल environmental कंसर्न्स। concern, hazards, safety hazards, environmental concerns. क्या तो क्या कैसे- बोल मैं environmental मतलब हाँ। प्रकृति को कैसे जोड़ के पर्यावरण पर्यावरण को आज की हाँ, तारीख में जहां तक आपका एनवायरमेंटल का सवाल है, मित्रों आज का ये आप कोई भी इंडस्ट्रीज छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी लगाते हैं तो आपको एनवायरमेंटल का तो आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। बिगर एनवायरमेंट को ध्यान दिए आप कुछ नहीं कर सकते। ये उसका आज जैसे ये कॉम्पिटेंसी एनवायरमेंट ये जो है वो उसका एक भाग है, उस भाग को आपको उसको लेके चलना ही पड़ेगा। बिगर एनवायरमेंट बाकी की चीजों के आप इंडस्ट्री को ठीक से चला पाना ज्यादा समय तक वो नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर। सत्यनारायण सर, सर हमको यहाँ एक रोकना last पड़ेगा। question. सर एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा नाम स्वयं टक्का मोरे है फ्रॉम एसवीपी सीईटी नागपुर। सर मैं ये पूछ रहा था कि हम जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग को पीछे पलट के देखने की अब जरूरत नहीं है? एक थोड़ा सा वापस में ठीक से समझा। सर ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं किसी भी बिजनेस करते वक्त? ये कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को अब बहुत ज्यादा एकदम पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग एकदम परफेक्ट रास्ते पे चल रहे हैं? देखिए ये होना निश्चित, क्योंकि जब तक पूरी जानकारी नहीं हो इसका मतलब है कि हमारी जानकारी में और एक तो जानकारी की कमी और दूसरी चीज है कि जैसे आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा चेंज हो रही है कि आप जो आज कर रहे हैं वो 10 दिन बाद या जो पहले से जो कर रहे हैं हमको पता नहीं होता है, लेकिन वो जो ऑलरेडी हो रहा होता है लेकिन हमको पता नहीं, इसीलिए हमको लगता है कि तो हम आगे बढ़ गए हैं लेकिन फिर वापस पीछे आ रहे हैं। उसका एक कारण केवल जो मूल कारण हो सकता है वो ये है कि एक तो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होना, या जितनी जानकारी होना चाहिए वो हमको नहीं होने की वजह से ये हो सकता है। नहीं तो यदि हम किसी भी चीज को ठीक से सोचकर पूरी जानकारी जो पात्रता की बात है, यदि उस पात्रता हमारे को पात्रता का मतलब केवल वो मतलब पात्रता एक इतना समग्र शब्द है जिसमें बहुत सारी चीजें समाविष्ट है, वो बहुत सारी चीजें हो जाती। तो जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं तो जो हमारे में क्या क्या साधन, क्या क्या नॉलेज, क्या क्या बाकी की जो चाहिए, ये सब कुछ हमको आज के युग में सोचना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, हमने लगभग 2 घंटा, आई थिंक वी शुड गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू our wonderful iconic speaker। बहुत बहुत सुंदर बोले सर। हम लोग 2 घंटे से इस चर्चा को सुन रहे हैं, हम लोग 2 घंटे से इस रूम में हैं, हम लोग इतनी सारी बातें सुने। मैं उसको सम अप नहीं करने वाला हूं क्योंकि बहुत समय लगेगा, हमने ऑलरेडी टाइम को ओवरशॉट किया। पर डेफिनेटली सर, वी आर सच सो ग्रेटफुल that you have given us key management lessons. What kind of management lessons? Lessons that they don't teach in Harvard. What you don't learn in Harvard is something that we have learned from you. Thank you so very much, sir. We are ever grateful to you. आप और हमारे बीच में बहुत सारे इतने प्रबुद्ध और ये वर्ग है कि मैं समझ सकता हूँ उनके सामने मेरा अपना नॉलेज, मेरी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि मैंने आपके प्रश्नों का जवाब ठीक से नहीं दिया हो, लेकिन उसकी मेरी अपनी लिमिटेशन है।
मेरे में जो योग्यता थी मैं जितना बता सका उतना मैंने अपनी कोशिश की। लेकिन मित्रों, लेकिन एक अपना बेसिक जो है, बेसिक एजुकेशन, बेसिक नॉलेज का जो फर्क है वो रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जानना और उसको व्यक्त करना, ये मेरी अपनी कमजोरी का मैं ठीक से व्यक्त कर पाना, ये मेरे में कला नहीं है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से कोई कोई बात हुई हो, तो मैं उसके लिए आप उसको अन्यथा नहीं ले। मैं आपसे इतनी बात करते हुए बहुत बढ़िया। विद दिस we come to a conclusion, but definitely we want to take a photo opportunity, right? हम लोग इस तरफ आ जाएंगे, फोटोग्राफर आप इधर आ जाएं, इधर आइए आप। Thank you, sir. Your words have been genuinely very insightful. Thank you so much for sharing your wisdom with us. I would now request Dr. Maitri to felicitate Mr. Nawal with a memento to commemorate this occasion. Ladies and gentlemen, please give a big hand. वैसे आपके सामने आने के लिए घबरा रहा I would now like to invite Mr. Narendra Sathwale to continue ahead with the unveiling of the Smarnika. Over to you, sir. नमस्कार। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो विद्यार्थी जीवन में भी निकले होंगे। वैसे पीछे विद्यार्थी है, उनको भूख भी लगी होगी, और इसके बाद कॉलेज में डिनर भी होगा, जो आपका डिनर होगा। एक 5 मिनट लेता हूं। विज्ञान भारती के बारे में आपने फिल्म देखी होगी, और फिल्म में बच्चों से लेके इंडस्ट्री तक हम विज्ञान भारती का काम करते हैं। एक ही दायित्व है कि कल का वैज्ञानिक बनाने का, और कल के सत्यनारायण जी नुआल यहाँ काफी बैठे होंगे जो 10 साल के बाद यहीं से निकलेंगे। भीमराज जी सर, आपने हमें मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। विज्ञान भारती 2023 से लेकर 2025 जनवरी तक जिन्होंने काम किया, बहुत सारा काम किया, उसका स्मरणिका, उसका आज अभी विमोचन होगा। विज्ञान भारती के जितने एडवाइजर और पैटर्न सामने बैठे हैं, उनको विनंती करता हूं वो स्टेज पे आए। सत्यनारायण जी नुआल हमारे पैटर्न हैं, भीमराव जी मैत्री हमारे एडवाइजर हैं, और रामा हमारे उपाध्यक्ष है। तो विज्ञान भारती इज द गैलेक्सी ऑफ सो मेनी पीपल। सर, अभी जो रिसेंटली जो हमारे एडवाइजर हुए वेंकट मोहन, जो नीरी के डायरेक्टर हैं, उनको भी मैं इनवाइट करता हूं कि सभी जन ऊपर आए। विज्ञान भारती के सचिव प्रकाश जी इटनकर, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर नरेश जी, आप भी आइए। सत्यनारायण जी, आप देख, उसको अनवील करना है, एक को ही अनवील करना है, बाकी सब ये करेंगे।
की कॉपीज परसों से सबको मिलेगी। धन्यवाद। इसके बाद आभार प्रदर्शन जो हमेशा होता है वो करने का भी हमें मौका मिला है। सत्यनारायण जी और सभी लोगों को विनंती है कि आपका स्थान ग्रहण करें। मेरे को क्या कि थोड़ा बोलने में बड़ी तकलीफ है। 23 नवंबर 2024 ये दिन सबको याद है। उस दिन महाराष्ट्र का इलेक्शन था, 23 नवंबर 2024। और उसके पहले शुक्रवार को, हम शुक्रवार को मिलते हैं, शुक्रवार को बैठक करते हैं, सभी जन काम करने के बाद विज्ञान भारती का काम करते हैं। किसी ने पूछा था कि विज्ञान भारती का काम आप 12 घंटे काम करने के बाद कैसे करते हैं और कैसे समय मिलता है। विषय यह है, जो व्यस्त होता है उसके पास ही समय होता है। ये उदाहरण है सत्यनारायण जी नुवाल जी का। कभी भी हम उनको फोन करते हैं, सर विज्ञान भारती का एक छोटा सा काम है, तो कब आए? अरे आज शाम को 6 बजे आ जा। मतलब आपके पास इतने बड़े बड़े लोग हैं? नहीं नहीं नहीं, पहले विज्ञान भारती, पहले राष्ट्र, बाद में बिजनेस। तो 23 नवंबर को हमने भीमराव सर को फोन लगाया कि सर ऐसा कुछ कार्यक्रम हम आयाम में कर सकते क्या? वो बोले क्यों नहीं कर सकते, मैं 2 साल से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन उनके पास समय की बहुत छोटी कमियां है। नहीं बोले वो ज्ञान भारती के लिए समय देते हैं। तो हमने उसी यानी फोन रखने के बाद हमने नुवाल जी से बात की कि हम ऐसा कर सकते क्या 15 फरवरी को। तो बोले जरूर हम कर सकते हैं। ये प्रेरणा मेरे तरफ से लोगों को जाएगी, कल के सत्यनारायण जी नुवाल बनेंगे, ये मकसद से लेके, ये दायित्व से लेके हम ये जरूर करेंगे जो आज दिन हुआ। तो आप विज्ञान भारती आईआईएम को आभारी है और धन्यवाद है कि आपका इतना बड़ा कैंपस, इतने स्टूडेंट्स, आपके जो डीन है गुप्ता सर, अलूर सर और आप, काफी आभार आपका। इसके बाद सत्यनारायण जी का भी एक धन्यवाद कि उन्होंने वक्त निकालकर अपने पूरे परिवार के साथ, तीसरी पीढ़ी भी सामने बैठी है, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। पत्रकार परिषद परसों हुई, काफी पत्रकार यहां आए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और इतने में सामने जो आईआईएम के विद्यार्थी और सिम्बायोसिस के विद्यार्थी और रामदेव बाबा कॉलेज के भी विद्यार्थी हैं जो ये प्रेरणा लेके सामने बढ़ेंगे, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ रामदेव बाबा कॉलेज, सिम्बायोसिस, पलोटी, अंजुमन कॉलेज, संचेती स्कूल, यहाँ हम पूरे साल में काम करते रहते हैं, पूरे विदर्भ में काम करते ही हैं। लेकिन नागपुर में ऐसी इंस्टीट्यूट है कि हमने जब बोला कि ऐसा विज्ञान भारती का काम है तो तुरंत आ जाते हैं। परसों ही संचेती स्कूल की बच्ची, जो पंतप्रधान का जो एक ये था परीक्षा के ऊपर चर्चा, तो नागपुर की लड़की थी, वो भी विज्ञान भारती से जुड़ी है, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, साइंस, इसके बारे में हमने काफी बात की, तो इसके बाद वंदे मातरम होगा और कार्यक्रम समाप्त होगा। धन्यवाद। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्, शुभ्र ज्योत्स्ना सुमित सुहासिनीं
सुमधुर भाषिणीं सुखदा वन्दे कोटिको बहुबंधारी रिपुदल वन्दे तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही रिधी तुम्ही मर्म ही प्राण बाहुते हृदय तुम्हारे वंदे वाणी विद्या नमामि कमला तुला सुजला सुफला वंदे श्यामला सुस्मित धर वंदे 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 मातरम बाकी सब